Hello everyone, welcome to my channel Teach for You. So in today's class we will discuss about the present tense. Now let's see. So now present tense is further categorized into four types. The first one is your simple present tense. The second one is your present continuous tense. The third one is your present perfect tense. And the fourth one is your present perfect continuous tense. Now we will see one by one. So now you can see here simple present tense. So first of all I'm going to tell you what is simple present tense. So simple present tense basically आपके जो habituals action होते हैं उसको represent करता है. It means जो fact होगा, जो truth होगा उसको वो represent करेगा. It means कोई action आप perform करने जा रहे हो and वो action still it means now अभी आप उसको perform कर रहे हो तो वो होगा आपका simply simple present tense. Now you can see here the formula for present tense, simple present tense, subject plus V1 plus object. And the second formula is subject plus V1 plus SES plus object. Now here I have separated two formulas for the same tense, for the same simple present tense. Why? Because subject plus V1 plus object it means V1 जो है वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल कैटेगरीज में होगा. ओके, इट मीन्स प्लूरल एंटिटीज हमारे पास प्रेजेंट होगी सब्जेक्ट में तो तभी हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल कैटेगरीज में होगा. इट मीन्स हम सिंपली V1 यूज़ करेंगे. इफ़ सपोज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कोई नाउ यू कैन सी हियर वी यूज़ V1 व्हेनेवर आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल. इट मीन्स प्लूरल कैटेगरी का अगर हमारा सब्जेक्ट है देन वी आर गोइंग टू सिंपली यूज़ V1. इफ़ सपोज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर कैटेगरी में है देन वी आर गोइंग टू यूज़ V1 प्लस यस ईएस. ना V1 प्लस यस ईएस इट मीन्स जो हमारा वर्ब होगा, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का उसके साथ हम एडिशनली ऐड करेंगे यस और ES. ओके, सो हियर ऑन द स्लाइड आई हैव डिफ्रेंशिएटेड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. लाइक हमारा जो V1 होगा उसको हम सिंपली बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, V2 हमारा पास्ट टेंस होगा, V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा एंड V4 होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट मीन्स जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 उसको कैटेगराइज किया जाता है सिंपली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो जस्ट now moving towards the present continuous tense. What is a present continuous tense? Whenever the action is going on, or what we can say when the action is in continuous state, that is your present continuous tense. Okay, so just suppose the example is I'm working on the same project. I am working on the same project. It means the action is going on, the action is still going on, it hasn't completed it. So this is your present continuous tense. Simply you can say she is giving me a pencil. तो जो सामने वाली है लड़की वो मुझे पेंसिल दे रही है. So she is giving me a pencil. So this is the action and this is in continuous state. So that's why I'm going to use here present continuous state tense. Another statement you can make here. Whenever the action will happen in future that has been already planned. ऐसी कोई एक्शन जो अभी फ्यूचर में घटने जा रही है एंड जिसको हमने ऑलरेडी प्लान किया है दैट इज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू. सो यू कैन फॉलो सम एग्जांपल्स ऑन द स्लाइड्स. So now I'm going to tell you how to use present continuous tense while forming the sentences. Okay, so the first one is you just have to remember the formula. So the formula is given here. Subject plus am is are plus V4 plus object. So here I'm gonna use three helping verbs am, is, are. So here am is always used with I, then are always used with plural subject and is always used with singular subject. So whenever the subject is singular I'm gonna use is, whenever the subject is plural I'm gonna use are, and whenever I'm gonna use I. So with I अब हमें क्या यूज़ करना होगा am. So simply
The formula is given here, and according to formula we are going to place each component in the sentence. So just say, I'm going to play a guitar. I'm going to play a guitar. So here I is your subject, am is your helping verb, playing is your V4 form. दैट हैज़ बिन ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हमारा V4 फॉर्म ही आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोना यूज़ V4 फॉर्म. And then I'm going to play a guitar. Guitar is your object. So simply one by one you can place each and every component in your sentence, in your formula, and you can form the sentences too. Now I am moving towards the present perfect tense. So what is a present perfect tense? Whenever your action is completed, whenever it is done, fully done, it can be your present perfect tense. And at the certain point you can make the another statement too. Whenever the action is at a certain point completed in past, and at certain point, at some point it is extends in present, it is your also present perfect tense. Okay, so the formula for present perfect tense is subject plus have oblique has plus V3 plus object. So here V3 it means your past participle. That is your past participle. It means I'm going to use here the third form of verb. Then I have chosen here have oblique has. Why have oblique has? Because have is going to be used here for plural subject, and has is used for singular subject. नाउ लेट्स सी, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो एक्शन होती है वो ऑलरेडी डन हो चुकी होती है, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके होते हैं इन पास्ट, एंड एट सर्टेन पॉइंट तक हम उसको खींच के लाते हैं प्रेजेंट में. सो दैट्स वाई वो हमारा बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला गिवन है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी फॉर्मूला में वन बाय वन हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डालेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फॉर्म सम सेंटेंसेस सिंपली. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रेड अ बुक. सो हियर मैंने सिंपली क्या किया कि सब्जेक्ट की जगह पे आई को लिया, देन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू दैट हमने वही प्रॉपर अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब प्लेस किया. देन जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने चूज़ किया. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वर्ब के सारे फॉर्म्स आपके लर्न होने चाहिए, सो दैट आप क्या कर सको, अप्रोप्रिएट सेंटेंस आप भी फॉर्म कर सको. सो वैसे मैंने रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, बट हम उसको रेड बोलते हैं बिकॉज उसका जो प्रोनाउंसिएशन है V3 एंड V2 फॉर्म में वो होता है रेड. सो दैट्स वाई उसका स्पेलिंग READ ही है V1 V2 V3 में, बट आई एम गोना यूज़ रेड वाइल प्रोनाउंसिंग, उसको यूज़ करना है आपको रेड. Okay, the second sentence is I have written a letter. Written is a third form of write, so that's why I'm going to use written here. मैंने लेटर लिखा. तो यहाँ पे आपकी जो एक्शन है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है. देन और थर्ड एग्जाम्पल इज, सो नाउ आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप चेंज ओवर टाइम डिस्क्राइब करते हो तो उस केसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू नैरेट एन एक्सपीरियंस ऑल्सो. ओके, सो जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि जो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सो यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, and you will make it. Okay, so now let's see the next slide. So now we are moving towards the present perfect continuous tense. So from the name आपको अभी समझ में आया ही होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इट मीन्स अभी परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूस टेंस है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस. सो सिंपली द डेफिनेशन इज़ लाइक दैट, और यू कैन से द नोट इज़ लाइक दैट कि जो आपके एक्शन होती है हाफ मैनर में कंप्लीटेड होते हैं, हाफ मैनर में वो रिमेनिंग होते हैं. इट मीन्स द प्रोसेस इज हाफ मैनरली कंप्लीटेड एंड हाफ मैनरली इज रिमेनिंग. ओके, सो जैसे आई एम गोना टेल यू एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग हियर सिंस 2009. सो अभी भी मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, और कब से कर रही हूँ,
2009 से। सो इट मीन्स जो मेरी वर्किंग प्रोसेस है, जो मैं काम करते आ रही हूँ 2009 से करते आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। सो इट मीन्स द प्रोसेस इज हाफ मैनरली completed and half mannerly it is remaining. Okay, so let's see the formula. So now let's see the formula for present perfect continuous tense. Okay, subject plus have been oblique has been plus V4 plus object. Okay, so here I'm gonna use have been oblique has been. So have been और has been जो हमारे helping verbs होंगे. Apart from that हमारा जो मेन वर्ब होगा वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट मीन्स V4 फॉर्म होगा अभी वर्ब का. ओके, सो हियर लेट्स सी द एग्जाम्पल. I have been traveling around the world for 6 months. I have been traveling around the world for 6 months. सो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया. प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में मैंने सीन्स का यूज़ किया था. सो हियर यू जस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड. हमें यहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है. सिंस इज बेसिकली यूज टू डिनोट द व्हाट वी कैन से पॉइंट ऑफ अ टाइम, एंड फॉर इज यूज टू डिनोट द पीरियड ऑफ अ टाइम. सो पॉइंट ऑफ अ टाइम एंड पीरियड ऑफ अ टाइम इट मीन्स कि अगर हमें कोई साल या फिर कोई एग्जैक्ट पॉइंट जो होगा हमारा टाइम का, तो उसको अगर डिनोट करना है या फिर उसको अगर रिप्रेजेंट करना है सेंटेंस में, तभी हम सिंस का यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ अगर हमें पूरा का पूरा ड्यूरेशन बताना है कि होल पीरियड कितना कवर किया है, in that case we are going to use for. Okay, so you just have to point it down. Now let's see the next slide. So let's see, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम हैव बीन एंड हैज़ बीन का यूज़ करेंगे. तो हैव बीन कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एंड हैज़ बीन वेन एवर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट. Now with the help of example I'm going to tell you how to use since and for in the sentences. So जैसे अभी grandfather है and he is reading a newspaper. So the sentence is like that. My grandfather has been reading a newspaper since morning. मॉर्निंग से ही मेरे ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं. हो सकता है कि मॉर्निंग का पीरियड चला गया एंड स्टिल अभी तक दोपहर तक मेरे जो ग्रैंडफादर है वो अभी भी न्यूज़पेपर हाथ में लेके बैठे हैं. सो इन दैट केस आई एम गोना यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. जैसे अभी हो सकता है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे आई एम प्लेइंग. ओके, सो प्रोसेस जो है वो प्लेइंग की प्रोसेस हाफ कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी स्टिल हमारा खेलना चालू ही है. तो हम इस केस में ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक आई हैव बिन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग. इट मीन्स दोपहर से ही सॉरी इवनिंग से ही मैं यहाँ पे खेल रही हूँ इस ग्राउंड में. इट मीन्स कि इवनिंग का पीरियड होके चला गया और अभी नाइट होने को आई है एंड स्टिल वी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, I kept one example in front of you. On the slide you can see that. So the example is she saves her money. This is your simple present tense. तो मैंने अभी यहाँ पे सिंपली जो हमारे जो फॉर्मूलाज है अकॉर्डिंग टू दैट मैंने वन बाय वन जो कंपोनेंट्स है हमारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स जो भी है उसको मैंने प्लेस किया है. सो शी सेव्स हर मनी. दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now I am going to convert this sentence into present continuous tense. So present continuous tense का जो फॉर्मूला होता है subject plus am is are plus V4 plus object. So according to that formula हमारा जो सेंटेंस है वो ऐसे होगा, शी इज़ सेविंग हर मनी. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो हैव ऑब्लिक हैज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. सो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना होगा? हैज़. सो शी हैज़ सेव्ड हर मनी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ब के फॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बिन ऑब्लिक हैज़ बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सो हियर शी हैज़ बिन सेविंग हर मनी. तो यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर ईयर भी बताना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस द ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर. सो शी हैज़ बिन सेविंग हर मनी सिंस 2005. अब आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सिंस 2006 अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट.
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें एडिशनली कोई चीज़ होनी चाहिए या फिर आपको इसके अलावा और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो यू कैन प्लेस मी इन कमेंट बॉक्स, इन द गिवन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन।